4 कंटेस्टेंट्स, सब कहते हैं वो सीए है, लेकिन इनमें से एक है जो ब्लफ कर रहा है। इन अ रूम फुल ऑफ सीएस, कैन यू गेस हु इज नॉट द रियल सीए? हेलो एवरीवन, मैं हूं असफर खान और आज मैं बात करने वाली हूं 4 सीए से। नो 4 इंडिविजुअल से जो कहते हैं कि वो सीए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 ही सीए हैं। तो चलिए गेस करते हैं कि इनमें से हु इज नॉट द रियल सीए। हमारे पास होने वाले हैं टोटल 4 राउंड्स और हर राउंड के एंड में आपको गेस करने का मौका मिलेगा दैट हु इज नॉट द रियल सीए। सो रोहित, मनाल, क्षितिज, गजानन, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? यस। तो हमारे पास होने वाले हैं टोटल 4 राउंड्स और हर राउंड में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आपको अपना आंसर तो देना ही, लेकिन साथ वाले का आंसर भी सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट राउंड के साथ, विच इज आइस ब्रेकर। इसमें हम जानेंगे आपके जर्नी के बारे में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सीए हैं तो आप अपनी जर्नी के बारे में बेहतर बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू रोहित। So when did you decide to pursue CA as a career? So when I was in class 12, at that time I decided that I want to pursue my career in the chartered accountancy. So since my mother also had a dream that she wants to do chartered accountancy, but she was not able to complete it, so I started that field. And from class 12 I decided. Then I taken my coaching from my hometown, which is Bhilwara, and I completed my CPT because that time there was no foundation. It was CPT exam. And in CPT, I scored 92% marks. And then I have given CA Inter and then CA Final. And now I am a chartered accountant and working with an MNC. Impressive. Chalo, Manal, your question is, what was the most challenging part of your CA journey? The most challenging part I would say is being disciplined, because बचपन से मैं disciplined नहीं था and CA करने का मेरा plan भी नहीं था. Once I got into this and started taking coaching, तब मुझे पता चला how to discipline myself. So discipline थोड़ा एक challenging aspect था. Discipline, सुन रहे हो आप? CA होकर discipline होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलो क्षितिज, can you share a memorable or funny moment from your CA preparation? I would actually share it from the whole CA journey. Actually हम सब CAs actually जब college life मिस करते हैं कि हमारा वो पढ़ाई में जाता है, फिर ऑफिस में जाता है. बट मेरे साथ ये क्या है कि हमारी जो हॉस्टल लाइफ रही है वो बहुत ही मेमोरेबल रही है और मैं इसको हर बार चेरिश करता हूँ. What inspired you to pursue a career as a chartered accountant? So basically first comes the prestige and then comes the money, of course. So Money, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुन रहे हो आप सब? नहीं, पैसे के साथ खेल सकते हो ना आप. बिल्कुल. So that was the primary objective behind pursuing CA. Otherwise, I would say that it's more like आपको एक holistic idea मिल जाता है कि what actually happens in a business, and you can actually see so many businesses around you and understand them. It's very fascinating, you know, from a life perspective also. You get to learn a lot of things, meet a lot of people, and have different perspectives. So that's fascinating. Quite serious answer, no? So Rohit, can you share a memorable moment from your CA journey that had a significant impact on you? So the memorable moment for me was that in my CA Inter exam, I scored an All India rank 18. So that was out of the blues because in CPT there was no rank, and then I given my CA Inter exam and I was first in my town that scored such a good rank in CA Inter exam. So that was the best moment for me. Guys, we have a ranker in the house. Okay, so Manal, what is the biggest challenge you faced during your CA preparation and how did you overcome it? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि मैंने कभी बुक्स पढ़े नहीं. बुक्स मतलब जो स्कूल में होते थे बुक्स वही पढ़ता था मैंने बुक्स नहीं पढ़े. तो जो CA बुक्स मैंने खोले उसमें कोई फोटोज़ नहीं थे और मैं बुक्स वही पढ़ता था जिसमें पिक्चर्स होते हैं. तो वो मेरे को बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए. मतलब आई डिडंट वांट टू रीड दोज बुक्स. तो वो हाउ डिड आई ओवरकम इट? कोचिंग, फ्रेंड्स एंड आई डोंट नो आपने कैसे CA की पढ़ाई करी होगी, बिकॉज यहाँ पर तो हमें बोरिंग बुक्स पढ़नी पड़ती हैं विदाउट एनी पिक्चर. सो चलो क्षितिज, डू यू हैव एनी फेवरेट सब्जेक्ट और टॉपिक विद इन द CA curriculum, and if so, why? Yes, my favorite topic would be financial reporting or basically financials because मेरे को नंबर्स में इंटरेस्ट रहा है. वैसे मेरा भी आंसर यही होता बिकॉज आई ऑल्सो लव डिजिट्स एंड नंबर्स, so I can relate with you. Okay, Gajanan,
How has becoming a chartered accountant changed your life and career aspirations? See, it was an experience which I cannot actually explain, but because वो visualize नहीं कर पाते हैं, because until you clear, you get that pass on your certificate, you are always in a doubt. अच्छा आधे ही है, and then once you become that, you are still awestruck, you know, you're just stuck over there and be like, okay, हो गया है क्या, अभी हो गया है क्या? And that was extremely fascinating, and everyone, you meet them and you tell you're a CA and they're like, oh okay, you're a CA, and then you're like, हाँ इतना बड़ा है क्या CA? अच्छा finally achieve कर लिया क्या? So that's very it's happy, and you get to see your proud parents as well, so that's more that gives more happiness. भाई मुझे तो इन चारों की जर्नी बहुत ही ज़्यादा रियल लगी, लेकिन इनमें से एक सीए नहीं है, ठीक है? तो आप गेस करके बताओ हु इज़ नॉट द रियल सीए, जब तक मैं भी सोच लेती हूँ। और हाँ, आप भी आपस में वोट करिए कि आपको क्या लगता है आप में से कौन सीए नहीं है। वेल, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चलने वाला है दैट हु इज़ नॉट द रियल सीए, बट इफ यू वांट टू बिकम अ रियल सीए देन जॉइन अनअकैडमी सीएज महाबली बैच फॉर योर सीए प्रिपरेशंस। लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट द वोटिंग बिगिन। हाय ऑल, राउंड 1 के बाद मुझे सभी के आंसर बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, बट कुछ आंसर मुझे ऐसे लगे कि जो मेडअप है, जो कहीं पर बहुत सारे कंटेस्टेंट ब्लफ कर रहे हैं। तो पहले जो मेरे पास में ही खड़े थे मनाल, तो उनके जो आंसर थे कि सीए में आपको क्या सीखने को मिला, तो उनका आंसर था डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन के साथ साथ सीए में बहुत स्मार्ट वर्क चाहिए रहता है, स्ट्रैटेजी चाहिए रहती है, हार्ड वर्क भी चाहिए रहता है। डिसिप्लिन तो हर प्रोफेशनल एग्जाम में या फिर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहिए ही रहता है। तो वो आंसर मुझे बहुत ही जेनरिक लगा। नेक्स्ट जो उनके पास में खड़े हुए थे क्षितिज, तो क्षितिज का जो आंसर था कि उनकी जो सबसे बेस्ट मेमोरीज है वो उनकी हॉस्टल की रही है, तो उससे मैं बहुत हद तक एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जब मैं भी अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था तो जो मेरी बेस्ट मेमोरी थी वो हॉस्टल की थी, क्योंकि वहाँ पे केवल मैंने सीए के लेसन्स नहीं बाकी बहुत लाइफ लेसन्स भी लर्न किए। तो मुझे भी लगता है कि सीए के कोर्स में अगर आप हॉस्टल में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो वो आपकी एक बेस्ट मेमोरी रहती है। और नेक्स्ट जो उनके पास खड़े थे गजानन, तो गजानन का जो भी आंसर था कि सीए बनने के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, हमको मनी तो मिलता ही मिलता है, बट जो प्रेस्टीज है, जो रिस्पेक्ट है, उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वो भी मुझे बहुत हद तक सही लगा और कन्विंसिंग लगा। तो तीनों में से जो मुझे बहुत लगा कि जो मेडअप आंसर दे रहे हैं या ब्लफ कर रहे हैं, वो मुझे लगा कि मनाल जो बहुत मेडअप आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उनके आंसर बहुत ज़्यादा जेनरिक लगे मुझे। हाय, बहुत टफ होने वाला है तीनों में से, बट मेरा गेस आई थिंक नंबर 4 गजानन ब्लफ कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना काम प्रिटेंड कर रहे हैं उतना काम है नहीं। यू वॉच हिज हैंड्स एंड द वे ही इज स्टैंडिंग, एंड आंसर्स आर सुपर जेनरिक, जनरल आंसर्स, एंड फॉर फ्यू आंसर्स ही लिटरली सेड कि मुझे नहीं पता कैसे एक्सप्रेस करूँ। दैट लुक्ड अ लिटिल प्रिटेंशियस। तो मेरा आंसर है गजानन। रोहित के आंसर तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहे थे, एंड सिंस ही सेड ही इज़ अ रैंकर, समबडी वुड रियली नॉट ब्लफ अबाउट इट दैट सेइंग इज़ अ रैंकर। मलाल बोला कि उसको he was not I mean he said about the books and he took a bit of time to answer. Gajanand, I feel I was not really sure in his answers, because when he was saying कि जब बनते हैं तभी पता पड़ता है, I was not really having that. Maybe he's seen some friends and that's why he's saying that there's a change that happens before you're a CA and once you're qualified CA. So I feel that is, I think he is the one who is not a CA. सबका तो बहुत जेन्युइन लगा, बट आई काइंड ऑफ फील दैट इट शुड बी रोहित, बिकॉज रैंकर एंड देन इट सीम्स वेरी प्रेडिक्टेबल एंड इट्स वेरी easy to mimic being a ranker, so you can just say you are a ranker and then you can enact like you've cleared. The others quite genuine. Kshitij, he said about hostel and everything, which I felt ki shayad maybe he's also doubtful, but can't still say that he's a CA. Manal, I feel he's a CA. Probably think it's Rohit. तो ये थे इन सब के ओपिनियन जो कि आपने भी देखे। अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सीए नहीं है, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए दैट हु इज़ नॉट द रियल सीए। और इसी के लिए मैं खेलने वाली हूँ उनके साथ नेक्स्ट राउंड, व्हिच इज गोइंग टू बी द रैपिड फायर राउंड। इसमें ना मैं इनसे इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, और जो सीए होगा ना वही उसके सही आंसर दे पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस राउंड के साथ। चलो राउंड 2 शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो रोहित, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAI? Institute of Chartered Accountants of India. Manal, name one famous CA who has achieved great success in the business world.
नारायण मूर्ति सर. Kshitij, how many attempts did it take you to clear the CA final exam? 3 attempts. इनका तो आंसर पहले से ही रेडी था. गजानन, what was the passing percentage for the CA final exams this year? This year, 7%. Rohit, what's the significance of the chartered in the chartered accountant? Chartered means that the chartered accountant is expert in the accountancy field. Manal, which section of the Income Tax Act covers the taxation of capital gains in India? Section 45 to Section 55. Okay, Kshitij, in the context of auditing, what is the purpose of substantive testing? So substantive testing में basically आप जो facts हैं उसको आप actually check करते हो. Check in the sense जो ledger हो गया, verification हो गया, vouching हो गया. ये this is more of a substantive testing जो बोलते हैं. Okay, Gajanan, what is the difference between IFRS and Indian GAAP? IFRS is basically for the entire global US standards, and Indian GAAP is with respect to Ind AS, basically Indian accounting standards. तो इन सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर तो आपको भी आते होंगे अगर आप सीए हैं या फिर सीए स्टूडेंट हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता देना और हम इनके ओपिनियंस लेते हैं. राउंड 2 के बाद मुझे लगता है कि क्षितिज और मनाल चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्योंकि उनके आंसर बहुत हद तक सही थे. बट जो गजानंद के आंसर जो थे वो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें ब्रेक लिया, और जो बहुत सिंपल आंसर थे जैसे कि सीए का पासिंग परसेंटेज क्या रहता है उसमें भी उन्होंने बहुत टाइम लेके भी गलत आंसर बताया. तो मुझे लगता है कि गजानंद इज़ नॉट ए करेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और इज़ नॉट ए रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड अदर 2 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. This round was tricky, but my answer stays the same. It is Gajanan to me. Answers भी थोड़े इधर उधर थे and he did fumble. तो उधर हमें लग रहा है, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है कि गजानंद है. सो राउंड 1 भी गजानंद, राउंड 2 भी गजानंद. After round 2, I think I am sure who is not the CA amongst us. Rohit, he answered all the questions well and they were correct. And I think Manal, when he answered who is the CA, who is the known CA in the industry, he said Narayan Murthy. Narayan Murthy is not a CA. So first thing, so I think that's where I think he's not the CA amongst us. And Gajanand, yeah, he answered. I think he also answered questions fairly, correctly. I think Kshitij is not a CA because it felt like he, बहुत फटाफट आंसर दे रहा था. तो ऐसा लग रहा था कि उसको ऑलरेडी आंसर्स पता है. And he was answering, one question. Even the host said that he answered before the question came. So I think it must be Kshitij. And Rohit, he gave most of the answers right. And Manal, provision तो सही बोला था उसने. तो आई थिंक इट शुड बी क्षितिज. तो ये हो चुके हैं हमारे 2 राउंड्स. कमेंट करके बताओ कि अगर आपका ओपिनियन अभी तक सेम है या फिर चेंज हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में अगर आपका ओपिनियन चेंज हो जाए. और सच बताऊं, मैंने नेक्स्ट राउंड ना बहुत टफ रखा है और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज मैं इनसे पूछने वाली हूँ जिसके आंसर इनको देने हैं. एंड दैट इज गोइंग टू बी द सीए जार्गन राउंड. चलो स्टार्ट करते हैं. सो रोहित, What is accrual basis accounting? अक्रूवल बेसिस में ऐसा होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन अक्रू होता है या फिर जब भी कोई ट्रांजैक्शन अकर होता है तब उसकी अकाउंटिंग की जाती है. और इसका अपोजिट होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, जहाँ पर कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो पे अकाउंटिंग करी जाती है. Manal, what is cost of goods sold? Cost of goods sold is direct cost of production of the goods sold, as simple as it says. Can you tell me the short form of it जो हम normally use करते हैं? Cost of goods sold की. COGS. Okay. Kshitij, tax deducted at source. So tax deducted source basically government. So what we do is normally at the end of the year government collects tax. So TDS is basically when I am actually earning the income. That at that point itself, the buyer basically deducts tax and pays it on my behalf. Gajanan, what is financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली रिप्रेजेंट आपका जो बिजनेस ओवरऑल है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट डिपिक्टेड ऑन पेपर. बेसिकली इट्स बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड इट्स नोट्स. दोज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Rohit, what is amortization? Amortization is part of the depreciation concept, where amortization is specifically applicable to intangible assets. So जो भी intangible assets रहती है उनको हम depreciate नहीं करते हैं, उनको हम amortize करते हैं. Manal, what is, like, I want to ask you a difference between tax evasion and versus tax avoidance. Tax evasion basically illegal way होता है. Basically tax ना pay करना या illegal way of
मिस इंटरप्रेटिंग और मिस प्रेजेंटिंग इट, एंड टैक्स अवॉइडेंस लेजिटिमेट लीगल वेज होता है जिससे टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। क्षितिज, लिक्विडेशन वर्सेस बैंकरप्सी। सो लिक्विडेशन इज बेसिकली जहाँ पे आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी बंद करना चाहते हो वॉलंटरीली, ब्रॉडली। लिक्विडेशन इज कि आई वांट टू शट माय बिजनेस, बट बैंकरप्सी से ऐसा होता है कि आपके पास पैसा ही नहीं बचा है और आपको ज़बरदस्ती धंधा, यू हैव टू शट डाउन योर बिजनेस कंपल्सरीली बिकॉज यू डोंट हैव फंड्स और बिजनेस इन प्लेस। ओके, गजानन, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? So transfer pricing is basically जब international transactions होते हैं, so between two countries, we have a policy to so there is a price differential between a product in India or USA. So we try to match it according to the Indian standards or the US standards, get the same level of pricing so that taxation can be done easily on that particular transaction. अच्छा, यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट व्हेन वी रीड अबाउट इट इन सीए। तो मेरे तो आंसू निकल गए थे वो कंसेप्ट करते हुए। आप बताना अगर आप सीए हो क्या आपके भी आंसू निकले या नहीं। यहाँ पर हमारा ये राउंड एंड हो चुका है। इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया सही आंसर गेस करने का, बट आप भी बताना क्या इनके आंसर्स ठीक थे या नहीं। इस राउंड के बाद मेरा कन्फ्यूजन और बढ़ चुका है क्योंकि जो मेरे लास्ट राउंड के गेस्ट थे गजानन, उन्होंने इस बार बहुत टफ क्वेश्चंस के भी सही आंसर्स दिए हैं। तो इस राउंड के बाद मुझे लगता है कि क्षितिज जो है वो इज़ नॉट ए करेक्ट रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन के आंसर उन्होंने बहुत घुमा कर दिए और बहुत टाइम लिया। तो मेरा इस बार गैस क्षितिज है कि वो एक असली चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। ओके, राउंड 3 के बाद आई एम स्टिकिंग टू माई आंसर गजानन, क्योंकि उसको एक्चुअली टफ क्वेश्चंस मिले थे बट उसने आसानी से बोल दिया और मुझे लगा कि रटा रटाया था कि एज दो उसे पहले ही मिल गए थे क्वेश्चंस। तो आई एम स्टिकिंग टू गजानन। या I think everyone was answering the answers fair, but I still have a hint कि it is Manal was not a CA. Gajanan was very clear in his tax concept, so उसने tax का सब अच्छे से explain कर दिया था. So I think it's Manal who's not the CA. Questions काफ़ी technical थे, so and spontaneous answers देना was not easy, but I think Kshitij was still giving very spontaneous answers. And I have a doubt. I still don't think it's Manal. I have a doubt between Rohit and Kshitij. देखते हैं। तो यहाँ तक हो चुके हैं हमारे 3 राउंड्स एंड आई होप कि इस बीच आपके ओपिनियंस चेंज भी हुए होंगे। इन केस नहीं हुए देन दिस राउंड इज गोइंग टू बी द डील ब्रेकर और डील मेकर फॉर यू, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ इनकी नॉलेज ही टेस्ट करी थी, जो कि कोई भी पढ़ के आ सकता है, मैं भी पढ़ के आ सकती हूँ, आप भी सब पढ़ के आ सकते हैं। लेकिन अब मैं पूछने वाली हूँ उनकी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप इज द गोल्डन पीरियड फॉर एवरी सीए एंड सीए स्टूडेंट। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पर एक सीए निखर कर आता है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाइफ के मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग कैरी होते हैं। सो रोहित, कैन यू रिकॉल द फर्स्ट क्लाइंट और द प्रोजेक्ट ऑन विच यू वर्क ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप और उसने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स योर लर्निंग? तो मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था आर्टिकलशिप पीरियड के ड्यूरिंग था, तो मैंने PwC से आर्टिकलशिप किया है। तो मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो था DHL, जो एक डिलीवरी पार्टनर है। तो DHL में सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट डे था, वहाँ पर सबसे पहले मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनाना सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने अपने फर्स्ट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में। और उसने बहुत मेरे को हेल्प किया फ्यूचर में भी कि क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टीम में कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वो सब चीज़ें मुझे मेरे फर्स्ट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में सीखने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें जो स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इतनी बड़ी टीम के लिए खाना कैसे ऑर्डर करते हैं, 20 लोगों में कितने पिज़्ज़ा चाहिए रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको पता चलता है आर्टिकलशिप पीरियड में। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस था आर्टिकलशिप का, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया फ्यूचर में भी। अच्छा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा PwC। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ PwC? अगर आप सीए हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा व्हाट इज़ PwC। ठीक है, तो मनाल, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीए हो ना तो आपको पता होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहना पड़ता है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ सीए कि वो पूरी उम्र पढ़ता रहता है, कभी उसकी पढ़ाई खत्म नहीं होती है। और अगर आप कह रहे हैं कि आप सीए हैं, सो एज अ प्रैक्टिसिंग सीए हाउ डू यू मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें लेटेस्ट चेंजेस के साथ, जो भी लॉज में आते हैं, कंप्लाइंस में आते हैं, हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो क्लाइंट है दैट इज ऑलवेज स्टे अप टू डेटेड विद द लेटेस्ट चेंजेस? मेरा आंसर क्वेश्चन से छोटा होगा, सब्सक्राइब टू टैक्समैन। also ICAI के भी जर्नल्स आते हैं, बट टैक्समैन इज
क्वाइट शॉर्ट आंसर, मैं आपसे थोड़ा सा लॉन्ग आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या आप थोड़ा सा और बता सकते हो? वेरी सिंपल, आइदर यू, एक तो आपको न्यूज़लेटर्स मिल जाते हैं टैक्समैन से वंस यू सब्सक्राइब, अभी आप करोगे तो 7 डे वीकली ट्रायल भी मिलता है आपको, एंड देन उस ICAI है कि भी जर्नल्स ठीक है बट अच्छा, अगर आप CEO तो आपको पता होगा टैक्समैन क्या होता है, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके क्षितिज, आपको क्या लगता है कि जब आपने आर्टिकलशिप करी थी उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ निकल कर आई जिसने आपकी हेल्प करी टू गेट सक्सेस इन योर CA फाइनल एग्जाम्स? मैं मानूंगा आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी थी, क्योंकि वहाँ पे फ़र्क ये पड़ जाता है कि वहाँ पे जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है और जो एक्चुअली मेंशन्ड है, एक एग्जांपल लेता हूँ ऑडिट का ही, मैं ऑडिट का हम जो भी मेंशन रहता है स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो एक्चुअली डिजिटली फॉलो होता है, उस पर कंप्लायंस किया जाता है। तो एक आर्टिकलशिप का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। तो मेरा ये एक चीज़ एक्सपीरियंस और मैं बेनिफिट बोलूँगा आर्टिकलशिप का, जो मैंने फाइनल में पढ़ रहा था वो ऑलरेडी आई हैड, मेरे आर्टिकलशिप में ऑलरेडी मैं कर चुका था प्रैक्टिकली, सो दैट वाज वन बिग बेनिफिट दैट आई हैड फ्रॉम माय आर्टिकलशिप। मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि आर्टिकलशिप के टाइम पर ना आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मे भी किसी और पर्सन को ना हो, और ऐसे लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस जब आपको मिलते हैं ना तो आप बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है गजानन, अगर आप बोल रहे हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सो एज एन एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे टू ऑल द न्यू आर्टिकलशिप ट्रेनीज जो भी आर्टिकलशिप में जा रहे हैं अभी, और वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक ऑफ आर्टिकलशिप? First week of articleship is basically chaos for the people who have finished their CPT, और वो अब जब आर्टिकलशिप में IPCC करके इंटरमीडिएट अभी इंटरमीडिएट हो चुका है, तो इंटरमीडिएट करके then they are into articleship and you guys are very young and you are surrounded by so many mature people around you and talking in full official terminologies, आप just कॉलेज के छोटे छोटे बच्चे हो तो फिर आई वुड से दैट बी काम, बी कंपोज्ड, बी हम्बल, एंड जितना हो सके आप ओपन माइंड रखिए, सबके साथ बात कीजिए, कंफर्टेबल हो जाइए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, यू नो, दोज पीपल विल बी द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू मेक यू अ CA rather than anything else. सो रोहित, आप ना उस सिचुएशन के बारे में बताइए जहाँ पर आपको बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट या फिर क्लाइंट के साथ काम करना पड़ा था, एंड क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी उसके टाइम पर? जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था तो मैंने बीच में एक क्लाइंट किया था जो रियल एस्टेट का क्लाइंट था। तो वहाँ पर जो क्लाइंट पे जो एम्प्लॉय थे जिनसे बेसिकली ऑडिटर का काम होता है डील करना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे डेटा देने के लिए या ऑडिट करवाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है ऑडिट में सामने जो वो नहीं चाहते हैं बताना। तो जब भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहता है जिसमें क्लाइंट थोड़ा सस्पिशियस रहता है तो वहाँ पर हमेशा डेटा मांगने में या ऑडिट करने में इशू रहता है। उस केस में आपके पास एक ही ओपिनियन होता है कि आप उस इशू को एस्केलेट करिए अपने पार्टनर तक, और आपके पार्टनर ही डायरेक्ट क्लाइंट से डील करेंगे और जो भी इशू होगा उसको वो रिजॉल्व करेंगे। और इसके अंदर आपके पास केवल इतना ही है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए क्लाइंट के साथ भी और अपने टीम लीड के साथ भी। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको आते हैं। आप एक छोटे से कितने 18-20 साल के बच्चे होते हैं और आपको जब एक बड़े क्लाइंट के साथ काम करना पड़ता है, वो जो आपके से डबल एज के हैं, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। ओके मनाल, आप सारे एस्पायरिंग सीएस को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि क्या उनको चीज़ देखनी चाहिए वाइल चूजिंग द राइट CA आर्टिकलशिप फॉर्म? आई एम सॉरी बट आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस, क्योंकि मैं CA, मेरे आसपास कोई CA है नहीं। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे CA बनने में मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो मैंने उन्हीं के पास आर्टिकलशिप ज्वाइन की, एंड टिल नाउ आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मुझे राइट गाइडेंस मिली, उन्हीं के साथ हूँ मैं। बट आई वुड से जस्ट रिसर्च एंड आस्क मोर पीपल अबाउट इट। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी आर्टिकलशिप जर्नी काफ़ी इजी रही होगी, क्योंकि आप अपने रिश्तेदार के अंदर ही काम कर रहे थे। हमसे पूछो, हमने किसी अनजान के अंदर काम किया था और हमने कितने पापड़ बेले थे काम सीखने के लिए। मैंने भी स्कैनिंग प्रिंटिंग की है फर्स्ट। So Kshitij, can you share a specific example of a critical decision you had to make during your articleship and where the outcome had a significant impact on the client or the firm you were working with? I don't think I have been put in very such critical situation in my articleship where such big decision making is put, but yes, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो जिसे हम ऑडिट में करते हैं मटीरियलिटी बोलते हैं। मटीरियलिटी इज़ ऑब्वियसली अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू स्टार्ट द ऑडिट। तो वो चीज़ जस्टिफाई करना, जज करना कि क्या होनी चाहिए, दैट हैज़ बीन वन क्रिटिकल डिसीजन दैट। अच्छा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा मटीरियलिटी, आप कमेंट करके बताओ इसका मीनिंग क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड व्हेन इट कम्स टू ऑडिटिंग। नाउ गजानन,
reflecting on your articleship experience, what was the most unexpected or surprising aspect of the CA profession that you have encountered, and how did you adapt to it? That I would say would be GST implementation. जब ये GST implement हुआ था, it was totally haywire. सब businessmen को speculation हो रहा था कि ये तो हमारा business ही बंद करवा देगा, ये वो. So managing all that as a chartered accountant, you're like an agent to the government. So you need to communicate the right perspective along with the laws to the client. So that was very critical. And we as representatives of our firm, it was a very big responsibility for us to, actually be very much updated with बहुत frequent changes हो रहे थे. So being updated and then letting them know कि इस चीज़ की वजह से ये हो रहा है. So that was very challenging and it was fun. It was like a very good exploration activity which we had. आई रिकॉल जब जीएसटी आया था इंडिया में, बहुत सारे लोगों ने, जनता ने सरकार को ट्रॉल किया था कि अचानक से इन्होंने पूरा लॉ चेंज कर दिया, टैक्स चेंज कर दिया, बट उससे भी ज़्यादा परेशान थे हम, क्योंकि हमको वो सब कुछ पढ़ना था. Exactly. सब कुछ भुला के हमें जीएसटी पढ़ना था. तो हमारे लिए वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही. साथ के साथ जो प्रैक्टिस कर रहे थे सीए में, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि उनको भी नई चीज़ पढ़नी थी और इम्प्लीमेंट भी करना था अपने क्लाइंट पे. सो आई थिंक दीज वर ऑल द क्वेश्चंस. तो ये था हमारा 4th राउंड यानी फाइनल राउंड, जिसमें मैंने इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे. आप बताना कि आपको क्या लगता है हु इज़ नॉट द रियल सीए. तो चलिए देखते हैं कि इनके क्या ओपिनियंस हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड विल रिवील दैट हु इज़ नॉट द रियल सीए. सब राउंड होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है कि वो सीए है, वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है मेरे दिमाग में भी. बट अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस सुने हैं, सबके आंसर देखे हैं, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि मनाल ने बहुत सारे क्वेश्चंस को डॉज करने की कोशिश की है, उनके बहुत मेड अप आंसर दिए हैं. तो मुझे लगता है कि मनाल इज़ नॉट ए रियल चार्टेड अकाउंटेंट, एंड अदर टू क्षितिज एंड गजानन, उन्होंने बहुत टू द पॉइंट आंसर दिए हैं, और बहुत टफ क्वेश्चंस के भी उन्होंने बहुत सिंपल आंसर देके प्रूव किया है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है. तो मैं वोट आउट करूँगा मनाल को कि वो एक सीए नहीं है. Oh God, after round 4 मैं कंफ्यूज हूँ अभी, बिकॉज गजानंद के आंसर्स, मोर देन हिज आंसर्स, हिज एक्सपीरियंसेस वर ऑन पॉइंट. दे वर नॉट लुकिंग प्रिटेंशियस, सही लग रहे थे, ऑनेस्ट लग रहे थे, और मैं कंफ्यूज था हर राउंड में क्षितिज और गजानंद के बीच में. तो दिस राउंड आई विल मूव टू क्षितिज एज द इम्पोस्टर. सो माई फाइनल डिसीजन इज क्षितिज. So based on these 4 rounds, I feel Gajanand is a chartered accountant based on his explanations, his experiences. Also Rohit also again is based on experiences. They both are chartered accountants. Manal on other hand, I feel he is not a CA. The kind of answers that he gave, that makes me give a conclusion that my conclusion he is not the CA, he is the imposter. It feels like I'm still holding strong with my opinion. It's either Kshitij or Rohit. Manal I feel कि is quite genuine and उसके experience के हिसाब से लगता है कि he is telling the truth. But technical rounds and everything were fine. But in the articleship round, I felt like Kshitij and Rohit were giving pretty much corporate answers, so which I feel that anybody could give. And so dekhte, I think it should be Kshitij. My opinion is Kshitij. तो गाइस चारों राउंड्स हो चुके हैं और हमने इन चारों के ओपिनियंस को भी लॉक कर दिया है. वेल आई डोंट नो द रिजल्ट, बट हम रिवील करेंगे ये अब जाकर कि कौन इनमें से सीए नहीं है. लेकिन हाँ, आगे जाने से पहले कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सीए नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट द टाइमर. लेट्स सी हु इज नॉट द रियल सीए इन 3, 2, 1. Oh God. Life experience. वेल डन मनल. मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था. बीइंग अ सीए इवन आई कुड नॉट बी एबल टू गेस हु इज नॉट द रियल सीए, बट आपकी एक्टिंग को तो दाद देनी पड़ेगी. So my name is Manal Ahmed. I am a professional actor. मुझे ये सब पता है because I went on to do my MBA, specialize in finance, marketing and international business. उसके बाद मैंने अपना PGPM भी किया, specialize in finance. That's how I can pull this off. I could pull this off. So thank you.
वेल इट वॉज अ वेरी शॉकिंग रिवील फॉर मी एंड आई थिंक आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, बट दिस इज़ नॉट द एंड। इस चैनल पर आपको सीए से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस मिलने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल विच इज़ अनअकैडमी सीए स्क्वाड। बट दिस इज़ नॉट द एंड। इस चैनल पर आपको सीए से रिलेटेड बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, इसको शेयर कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी सीए स्क्वाड।